Hello students, we are revising chapter 10, that is water pollution, and in previous video we have revised about the effects of water pollution कि जो water pollution है वो किस तरह से हमको affect करता है. So we have revised that poisonous chemicals from factories kill marine animals. Industrial and agricultural wastes increase the growth of microorganism. जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वाटर में, एंड दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, और जिनकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कम हो जाती है. नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल्स फ्रॉम फॉर्म अ कवर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे ये कवर बना लेते हैं. दिस कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर. जो वाटर के नीचे एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, बिकॉज जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर एक कवर बना देता है. सो उनके लिए जो सप्लाई है वो कट हो जाती है उसकी वजह से. एंड नेक्स्ट इज aquatic plants and animals get infected by polluted water. Obviously जब वो गंदे पानी में रहेंगे, polluted water में रहेंगे, तो वो उसी को पिएंगे, उसी में वही उसके अंदर ही उन्होंने रहना है, तो वो infected हो जाते हैं. And when other animals eat these infected animals or plants, they also become sick. वो भी बीमार पड़ जाते हैं. Some animals use river and pond water for drinking, right? And drinking polluted water may cause diseases like typhoid, diarrhea, cholera and jaundice. So you must know the name of these diseases because question answers में भी I think ये जो है diseases के names पूछे गए. Next is when polluted water is used for irrigation. अगर हम polluted water को irrigation के लिए use करेंगे, the fertility of soil gets reduced and crops can get damaged. And now today we will revise about the prevention of water pollution, that how we can prevent water pollution. Water pollution को हम कैसे prevent कर सकते हैं. So we have learnt about the different activities that can cause water pollution, right? हमने causes of water pollution पढ़े हैं, उनके effects हमने revise कर लिए हैं, and some steps that may be taken to check water pollution are suggested below. So let us revise them. Wastes from factories and powerhouses should not be allowed to flow into rivers directly. So जो preventions हैं that are just opposite of the causes. जो causes हैं जिसकी वजह से water pollution है, अगर हम वो चीज़ें ना करें तो वो preventions बन जाएंगे. जैसे waste in factories from powerhouses, वो कहाँ डालते हैं ज़्यादा? rivers में. अगर हम वेस्ट जो फैक्ट्रीज के हैं और पावर हाउसेस के हैं उनको अगर हम रिवर में जाने से डायरेक्टली रोक देंगे, सो इट प्रिवेंट्स वाटर पॉल्यूशन, राइट? सो दैट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर्स डायरेक्टली. नेक्स्ट, पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर. व्हाई? बिकॉज जो सीवेज का पाइप्स हैं वो कैसा वाटर लेकर जाते हैं? गंदा पानी, polluted water, right? And जो pipes drinking water लेकर आ रहे हैं उसमें clean water होता है. अगर वो pipes एक दूसरे के साथ टच हैं और by the way उनमें लीकेज हो जाए pipes में, so what will happen? वो मिक्स हो जाएंगे, and अगर वो मिक्स हो गए तो हमारे घर में कैसा आएगा? वही सेवेज का वाटर मिक्स होके हमारे घर में आ जाएगा, and then we drink that polluted water, and you know that what will happen if we drink polluted water. It causes diseases like typhoid, diarrhea, cholera and jaundice, which are very dangerous. So जो pipes हैं, sewage के pipes and जो water drinking water carry करते हैं pipe, उनको हमें क्या करना है? दूर रखना है. Should be kept away from each other. Next is water from drains or sewage should not be allowed to enter into wells or rivers. So ये भी एक कॉज था वाटर पोल्यूशन का कि हम जो सेवेज का और ड्रेन्स का जो वाटर है वो कहाँ पर फेंक देते हैं? दैट इज रिवर्स में. बट
we should not allow to enter it into wells or rivers. अगर हम उसको अलाउड नहीं करेंगे और वेल्स और रिवर्स में वो सीवेज और ड्रेन का पानी जाने, तो इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द वाटर पॉल्यूशन. And people should not wash clothes or use soap if they bath in rivers. So that also is a cause of water pollution. So इसका opposite, अगर people क्लोथ वॉश नहीं करेंगे और अगर उसमें बाथ करते हैं, नहाते हैं, तो सोप यूज ना करें, बिकॉज जो सोप होता है उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. सो अवॉइड यूजिंग सोप इफ someone baths in the river. The use of chemical fertilizers should be minimized. Why? Because when this chemical fertilizers or pesticides get mixed with rainwater, it flows into the river. ये सारा रेन वाटर से के साथ डिजॉल्व होता है, मिक्स होता है और ये फ्लो करके रिवर में चला जाता है. एंड इट अगेन कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. सो हमें इनको यूज जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो कम करना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन यूज टू इंक्रीज अवर क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज नेचुरल मैन्योर. सो व्हाट इज अ नेचुरल मैन्योर? लाइक काउ डंग और एनिमल एक्सक्रीटर जो हम यूज करते हैं, स्पेशली काउ डंग. सो उसको हम यूज कर सकते हैं. और जो कंपोस्ट हम बनाते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं इन द फील्ड्स, बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल एंड इट इज गुड फॉर द सॉइल एज वेल एज फॉर द क्रॉप्स ऑल्सो. और जब हम जो केमिकल्स अगर हम यूज नहीं करते हैं, देन जो क्रॉप मैन्योर से ग्रो करती है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ. जो क्रॉप्स आपके पेस्टिसाइड्स जिसमें डले होते हैं, फर्टिलाइजर्स डले होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स डले होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो वी शुड यूज नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स. And all of us are a part of the society, so it is therefore the responsibility of every citizen to keep our surrounding clean and disease free. So जो ये हमने प्रिवेंशंस करने हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का काम नहीं है. वी ऑल शुड टेक पार्ट इन प्रिवेंटिंग द वाटर पॉल्यूशन. हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वेस्ट होते हैं, घर का वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, वो हमें इधर उधर थ्रो नहीं करना है, वाटर में थ्रो नहीं करना है, वो प्रॉपरली डस्टबिन में हमें डालना है. सो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, सो इससे जो है पॉल्यूशन वो कम हो जाएगा. नॉट ओनली द वाटर पॉल्यूशन बट अदर पॉल्यूशंस ऑल्सो, राइट. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.